welcome students to the economics class. In yesterday's class, we did numericals related to multiplier, investment multiplier. So today we will do the numericals related to determination of equilibrium level. Okay. So before starting with the numericals, I will tell you what all formulas will be used here. So we have done that there are two approaches for equilibrium in this chapter. The first approach is ADAS approach and the second approach is SI approach. So according to ADAS approach, economy will be at equilibrium when AD will be equal to AS. That means aggregate demand will be equal to aggregate supply. According to the second approach, economy will be at equilibrium when savings are equal to investment. Okay. So when AD is equal to AS, that means AD किसके बराबर होता है? C plus I के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो आपका एग्रीगेट सेविंग्स होता है वो किसके बराबर होता है? Y के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर। So in these numericals you will be mainly using these two equilibrium equations. ठीक है। इसके अलावा we also know that y is equal to consumption plus saving. We know these things. So maybe you will also use these at some point of time. ठीक है। We know that MPC is equal to delta C over delta y. MPS is equal to delta S over delta y. Consumption function use हो सकता है. Autonomous consumption plus dy. B is MPC. Maybe we need to use saving function. Saving function is minus C bar plus 1 minus B into y. Then we also know that MPC और MPS का total जो होता है क्या होता है? 1. ठीक है। So mainly ये जो highlighted आपके सामने equations लिखी हैं, these are the two main equations, equilibrium conditions, equilibrium equations which we will be using. ठीक है। अब जब ये वाले न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम इनकम इज दिस, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट इज दिस। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इक्विलिब्रियम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नॉट ऑलवेज वन वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देयर विल बी मोर देन वन वे, लाइक 2 वेज हो सकती है, 3 वेज भी हो सकती है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20 टुडे. In a two-sector economy, the income and consumption functions are y is equal to C plus I. At C is 50 plus 0.8 y. If the investments are 50 crore, calculate equilibrium level of income and level of consumption at equilibrium, saving at equilibrium. So you can see the word equilibrium is being used again and again. So just keep in mind we will use these conditions for sure. ओके। तो देखो जी हमें क्या गिवन क्या है, गिवन लिखना होता है सबसे पहले। गिवन इज C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 y. इन्वेस्टमेंट इज गिवन 50 करोड़. यू आर सपोज टू फाइंड y, C, S. पहले ये ढूंढोगे, इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में यू विल फाइंड C, यू विल फाइंड S. ठीक है। आई एक्सप्लेन यू हाउ। अब देखो हमें क्या चाहिए y, राइट। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज कर लो। लिखो एट इक्विलिब्रियम y is equal to C plus I. Y as it is लिख दो। C की आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको as it is फिल कर दो इसमें। I आपको दिया हुआ है 50। ठीक है। तो 50 plus 50 100, इधर ले आओ 0.2 y, 100 over 0. तो हमारे पास y कितना आया? 500 करोड़, रुपीज 500 करोड़। ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है जहां पे AD AS के बराबर होगा, SI के बराबर होगा। इस इनकम लेवल पे यू हैव टू फाइंड C एंड S. अब कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 y.
y कितना है 500, 0.8 इंटू 500 कितना होता है 400, सो 50 प्लस 400 कितना आया 450 करोड़। तो इक्विलिब्रियम कंजम्पशन आएगी 450 करोड़। हमें अब क्या चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग। देखो सिंपल है, एट इक्विलिब्रियम सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एट इक्विलिब्रियम savings are equal to investment, therefore saving will be how much 50 crore at equilibrium। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देयर वाज सेकंड मेथड आल्सो। वो सेकंड मेथड ये था कि आप सेविंग तो डायरेक्टली सेम ही आ जाएगा s इज इक्वल टू i, ठीक है। दूसरी अप्रोच थी कि आप सेविंग फंक्शन को यूज कर सकते थे कि पहले सेविंग ढूंढ लिया, सेविंग अपना 50 आएगा तो सेविंग फंक्शन लगा के इस तरह से यू कुड हैव फिल्ड द वैल्यूज हियर। सेविंग की वैल्यू है 50 माइनस सी बार कितना होगा -50। अगर MPC 0.8 है तो 1 माइनस MPC कितना होगा 0.2 बाय अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 100 ओवर 0.2, तो y कितना आएगा 500, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। So I told you ना there are many ways to solve the question. So this was question number 20. Let's do question number 22. Question में you are given saving function s is equal to -50 plus 0.4y, यानी कि MPS given है। This is saving at zero level of income. Economy is in equilibrium at the income level of 1500 crore. Calculate investment at equilibrium, autonomous consumption at equilibrium, and also find multiplier। तो ये सब फाइंड करना है। जैसे जैसे यू विल प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है। अगर y की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दे तो सेविंग आ जाएगी। जब सेविंग आ गई तो सेविंग तो इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पे, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, s विल बी इक्वल टू i। अब डेल्टा c और k फाइंड करना है सब, ठीक है। डेल्टा c तो अपने को क्लियर ही है, डेल्टा c बोल रही हूँ, c बार क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो गिवन है ऑलरेडी -50। सेविंग फंक्शन में -c बार होता है, तो वही तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, जस्ट विद अ पॉजिटिव साइन। सेविंग एट जीरो लेवल एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल इज वन एंड द सेम वैल्यू, पर सेविंग एट जीरो लेवल नेगेटिव में होती है क्योंकि जीरो लेवल पे सेविंग इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। सो देखो सबसे पहले c बार ही ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है तो ऐसे सॉल्व करोगे। वी नो दैट सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू दिस, वी नो दिस, एंड हियर s is equal to -50 plus 0.4y, therefore c bar is 50 crore, ठीक है। अब savings are equal to this, so we will fill the value of y here, and y is 1500, so -50 plus 150, तो ये कितना आएगा 600 minus 50 will be 550. So it's absolutely correct. So I have got savings that is 550 crore. आगे लिखो, we know that savings are equal to investment at equilibrium. Therefore investment भी कितनी आएगी जितनी saving है, that is 550 करोड़। लास्ट में k ढूंढना है, k तो बड़ा आराम से आ जाएगा, कैसे 1 over 1 minus MPC, ठीक है। MPC हम यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे लिख दो, therefore MPC is also 0.4, क्योंकि इस कंजम्पशन फंक्शन से c बार
MPC की वैल्यू पता लग रही है तो डायरेक्टली जस्ट पुट इट ओवर हियर 1/1 minus 0.4 तो 10/6 और 10/6 को when you will divide तो what will you no this is MPS sorry this is MPS 0.4 ठीक है ठीक है यहाँ पर MPS का फॉर्मूला लगा दो 1/MPS so 1/0.4 2.5 so this was question number 22 now let's do question number 29 okay let's do question number 29 same है question कोई ज़्यादा फर्क नहीं है from the following information about an economy calculate its equilibrium level of national income by ढूंढना है सेविंग ढूंढनी है and equilibrium consumption function is given 200 plus 0.95 okay so investment expenditure is given 3000 okay पिछले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन को ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वही बोल रही हूँ सेम चीजें हैं राइट सो देखो क्या करना है इसमें हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है मतलब हमें सी बार दिया हुआ है हमें एमपीसी दिया हुआ है हमें आई दिया हुआ है हमें चाहिए क्या हमें चाहिए सेविंग ठीक है इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज कर लो सेविंग कैसे आएगी सेविंग एंड इक्विलिब्रियम वी नो दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो सेविंग कितनी आ गई ठीक है सिंपल अब वाई ढूंढना है वाई कैसे आएगा वाई ऐसे आ सकता है अगर कंजम्पशन फंक्शन ये है तो सेविंग फंक्शन क्या होगा ये माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई एमपीसी की वैल्यू तो एमपीएस 0.1 आएगा अब सेविंग 3000 इसमें फिल कर दो वाई हमें चाहिए तो 3200 अपॉन 0.1 32,000 सिंपल ठीक है अब इसको करने का एक और तरीका था यहाँ तक सेम है एस आ गया दूसरा तरीका था कि आप यहाँ पर c प्लस आई इक्वल टू वाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेते कि एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट c प्लस आई इक्वल्स टू वाई वाई हमें चाहिए c फंक्शन एज इट इज फिल कर दो आई अपना है 3000 वाई हमें ठीक है ऐसे भी कर सकते थे देखो कैसे आएगा 3200 आ गया कि नहीं सेम ठीक है तो ऐसे करते हैं भाई जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते जाओ ठीक है लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल calculate MPC from the following information so this is question number 51 calculate MPC equilibrium level of income is given 350 consumption expenditure at zero income that is C bar autonomous consumption is given investment given है कितनी 50 ठीक है तो MPC ढूंढना है हमने राइट अब देखो इक्विलिब्रियम वर्ड आया है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे ठीक है वो बात तो क्लियर है अब कैसे आएगा ऐसे आएगा देखो we know that consumption is equal to C bar plus B by this we are having this we need to find this also we are having ठीक है तो इसका मतलब ये तो नहीं लग सकता है ठीक है अगर यहाँ पे सेविंग फंक्शन में लिख दूँ
ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 माइनस बी इक्वल्स टू एम पी एस। ठीक है, अब देखो 70 350 इंटू एम पी एस, 70 अपॉन 350, 1/5 आ गया। ठीक है, एमपीएस कितना आ गया 1/5 यानी कि 0.2। एमपीसी ढूंढ लेंगे बिकॉज वी नो कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 होता है, तो एमपीसी कितना आएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चंस। ओके, if you have any doubt you can discuss in the doubt section. Okay,